ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣವರು. ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಮೆತ್ತೇಜಿಯವರು ಭಗವದ್ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ. हाँ उसको लो। साधु 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 बंदिश वो करेंगे बंदिश बंदिश वो करेंगे बंदिश। हाँ चलिए साधु बंदिश ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ साधु 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 बंदिश यस साधु साधु ಕೂತು ಕೂತು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಓ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮ್ಮದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಚಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥವರು ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲ್ ಮಹಾತೇರವರು, ಬುದ್ಧನೆಯ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೂ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವಂಥವರು. ಈಗ ಈ ಆಂದೋಲನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇದು, ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೋರಕಿತ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದವರು, ಕರ್ನಾಟಕದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದತ್ತ ಬಂತೇಜಿಯವರು ನಿಯೋಜಿತ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇವರು. ಬುದ್ಧಮ್ಮ ಅವರು ನಾಗಸೇನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದವರು, ನಾಗರತ್ನ ಲುಂಬಿನಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫೋರಮ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಆಕಾಶ್ ಲಾಮ್ ಅವರು, ಇವರು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದವರು. ಎಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್. ಸೊ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ 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 ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. BSI ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್. ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಜೈನ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇದಾರ್ ಬೀದರ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಆರ್.ಕೆ. ಸತೀಶ್ ಹಾಸನ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್. ರಮೇಶ್ ಕಾಪುಳಗಿ ಬೀದರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಜಿ.ಸಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್. MS ವರ್ಮ ತುಮಕೂರದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಂಟಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ನಾಗರ SST ಮತ್ತು RP ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ನಾನು ಮಹಾದೇವ್ ದಿಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ RPI ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ. ಚೂಡಾಮಣಿ BSI ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಿಳಾ. ಜಮೀನು ನಮ್ಮದೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಧರ್ಮಚಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಂದೀಪ್ ಜೈಭೀಮ್ ನರಸಿಂಹ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಸಂದೀಪ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖರು. ಇರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಸರ್, ಜೋರಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಗಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ RPI ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಅಪ್ರಂಟಿ ಗೌರಿ ಪಿಂದೂರ್ SST RPI. ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಭಟ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಟಿ. ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ DSS ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾರ. ರಾಜಪ್ಪ DSS ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸಂದೀಪ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ ತಳ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಮುಖ. ಸ್ವರೂಪ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ದೇವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ RPI. ನಾನು ಮಹಾವೀರ್ ಸಾನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಪ್ಪಳ. ರಾಮನಗರ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
कहाँ से आए लोग, कहाँ से बेंगलोर मंगल कहाँ है हम? हाँ? ओके ओके ठीक है ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ इंट्रोडक्शन वहीं कैमरे के सामने ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಗಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ SSD ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೊತೆಗೆ बौद्धाचार्य जी, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. राजेंद्र जी और थोड़ा सा दीजिए. ನಾನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫೋರಂನ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್. ನಾನು ಕೂಡ ವಿಜಯಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಭಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಪೂಜ್ಯ ವಂತೇಜ್ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫೋರಮ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫೋರಮ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಭೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫೋರಮ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಆಕಾಶ್ ಲಾಮ್ ಅವರು ಇಡೀ ಬುದ್ಧಗಯ ಚಳವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈಗ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಬರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡು ಚೇರ್ हेलो वेंकटेश, वो स्टैंड उधर से लेके आ जल्दी से. नमो बुद्धाया, जय भीम सभी को. अभी आप लोग कन्नड़ भाषा में बोल रहे थे, मैं समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था. अब यहाँ पर साहब ने बोला आपको बोलने का मौका दे रहा है, तो मैं बोला मैं खड़ा हो गया. तो जब भी मैं कोशिश करता हूँ आपको स्वागत करने के लिए. कर्नाटका दा हम मित्र के नमो बुद्धया, जय भीम. ಎಲ್ಲರಿಗೂ हार्दिक स्वागत. तो ये पढ़ के किया है, काफ़ी समय लग रहा था पढ़ने के लिए भी, मैं लिख लिया. अभी आपको मालूम चल रहा है ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है क्या, कौन है, कहाँ का है, दार्जिलिंग का है. अभी मेरे किसी एक ने पूछा आप इंडियन हैं, मैं बोला मैं तो एकदम बोनाफाइड इंडियन हूँ. बोनाफाइड इंडियन हूँ, मेरा 5 जनरेशन तो इंडिया में ही है. तो अभी ये धारणा हमारे बीच में है. तो पिछली साल 22 अप्रैल में हम लोग ने बोध गया में मीटिंग की, सभा रखी. थोड़ा लंबा जाएगा, आप लोग प्लीज मेरे को बियर कीजिए, सहन कीजिए, सही है. तो 22 अप्रैल में मीटिंग की, क्योंकि हमारे क्षेत्र से दार्जिलिंग से वांगदी छिरिंग भुटिया 2012 में उन्होंने रीट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में
इज हिंदी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? ये तो इंग्लिश में बोल सकता हूँ। हिंदी बोलते तो थोड़ा मिक्स करके बोल। वो तो प्रॉब्लम, मिक्स करने से प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हम जो बोलेंगे आप जो बोलेंगे दिल से बोलेंगे। यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ हमारे अपने भाई अपने बहन है, अपने भैया है, इसलिए हम दिल से बात करेंगे। दिल से बात करने के लिए 2000 किलोमीटर से यहाँ आए हैं। तो हमने वांगदी छिरिंग भुटिया जी, उनके बेटे नोरबू छिरिंग जी, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और दिल्ली के कमिश्नर थे, पुलिस के कमिश्नर। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपने इंडिविजुअल लेवल पर एक रिट पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। किस कारण से? बोध गया महाबोधि महाविहार हमारी बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, जैसे मुसलमानों की मक्का मदीना है, क्रिश्चियनों की जेरूशलम है, इसी प्रकार से बौद्धों की बोध गया महाबोधि महाविहार है। वहां पर कमेटी है, वहां पर एक कानून लागू है, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। उस कानून में क्लियरली लिखा है कि ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, इसमें क्लियरली लिखा है कि कमिटी में 9 मेंबर रहेंगे, 9 में 4 बौद्ध रहेंगे और 4 हिंदू रहेंगे। हिंदू मैंने समझ रहे आप? ब्राह्मण रहेंगे। और एक डीएम, जो गया के डीएम है, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ही और शी विल बी द डीसीडीएम। और इसमें लिखा है क्लॉज में, डीएम शुड बी हिंदू। आप लोग बैठ जाइए, शांति से सुनिएगा, सुने आ रहा सब एकदम क्लियरली सुनिए। ही और शी शुड बी हिंदू। संसार में कहीं भी ऐसा धर्म स्थल नहीं है जहां पर किसी भी धर्म स्थल को अन्य धर्म के लोग वहां पर संचालन कर रहे हो। सिर्फ महाबोधि महाविहार बोध गया में अन्य धर्म के लोग हैं। तो उस आधार पर रिट पिटीशन फाइल की थी। वांगदी छिरिंग भुटिया गुजर गए। भंते जी तभी धर्म देश में बोल रहे थे स्वर्ग कहाँ है, ये है। मैं स्वर्गीय नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इंडिया में स्वर्ग है वो क्रिमिनल को भी स्वर्गीय बोलता है। जो क्राइम 10-10 मर्डर किया वो भी स्वर्गीय। स्वर्ग यही है, नरक भी यही है, हम ये समझते बहुत। तो वांगदी छिरिंग भुटिया जी हमेशा हमको कहते थे, आकाश जी आप आंदोलन आगे बढ़ाइए, आगे आंदोलन बढ़ाइए। ये भंते सुरेश देसाई ने 1991 में किया था आंदोलन, 25 साल हो गया है। क्योंकि हम लोग ने बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरकारी छुट्टी नहीं थी, गवर्नमेंट हॉलिडे नहीं थी। वेरेस बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर का नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, बुद्ध के नाम पर रखा गया है, उस राज्य में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी, और किसी अन्य धर्म का मुर्गी से लेकर बकरी तक छुट्टी था। मुर्गी बकरी ईद क्या ईद होता ना, सब में छुट्टी, मुर्गी से लेकर बकरी तक। लेकिन बौद्धों का एक पर्व है जो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं है। तो 2015 में मैं एक मानेपा संघ का सेक्रेटरी था, तो मेरे को मौका मिला जाने के लिए कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो कॉलेज स्ट्रीट में है, वहां पर मीटिंग रखा हुआ था। तो वहां पर चर्चा हो रही थी बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी नहीं होना।
सबको अपने अपने मौका मिले। मेरा उम्र थोड़ा कम था, जस्ट मैं बैंक से BRS दिया था, 42 साल का था, तो मैं बोला कि मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दे। तो वहाँ पर हमने सेंसस अपना जो 2011 का सेंसस जो वो दिखा रहे थे, बुद्धिस्टों का संख्या कितना है भारत में, स्टेट वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना है, मैंने रखा और उनको कहा पहले बड़े बड़े संस्था, भाई लोग बैठ जाइए, थोड़ा बैठने से क्या होगा क्लियरली समझ पाएंगे। एक्सक्यूज मी भाई, आप बैठ जाइए, जो आएंगे खुद बैठ जाइए। तो थोड़ा फोन भी आप थोड़ा साइलेंट में रख दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कहानी, ये कहानी बोलने का मैंने, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, आपको मैं जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो 2015 में मैंने बोला कि इतने भारत स्वतंत्र हुआ 72 साल हो गया है, 1947 में स्वतंत्र हुआ और बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं है। बड़े बड़े संस्थाओं ने ये कोशिश की थी, वहाँ पर बरुआ एसोसिएशन है, तामांग एसोसिएशन बहुत है, और मैं जहाँ दार्जिलिंग क्षेत्र रहता हूँ, बहुत ज़्यादा है, भूटिया, टिबेटन, गुरुंग, तामांग, बरुआ। तो हमने कहा कि एक कमेटी बनाते हैं, जो कमेटी आप सुन रहे अभी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये कमेटी बनाए और हम लोग ने कमेटी बनाकर सभी को लेकर एक कमेटी बनाई और कहा 19 मार्च में सिलीगुड़ी जानते हैं आप, सिलीगुड़ी एक कॉरिडोर है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, वहां से 20 किलोमीटर पर नेपाल है, 20 किलोमीटर पर बांग्लादेश है, भूटान पास में है और एरियल डिस्टेंस में 100 किलोमीटर में चाइना है। तो वहां पर हम लोग शांति रैली करेंगे, अपना प्ले कार्ड रहेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि करते हम लोग रास्ते में उतरेंगे और आप लोग अपने पैसे से आइए। वहां पर बोला, हजार लोग आए, सभी संगठन अपने अपने बैनर पर आए और 430 मेमोरेंडम हम लोग कलेक्शन किए और वर्ड टू वर्ड भी एक ही, कोई बांग्ला भाषा में, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई नेपाली में, अपनी अपनी भाषा पर। और उनको रिक्वेस्ट किए कि आप लोग अलग अलग जाके मुख्यमंत्री को मत दीजिए, एक साथ जाते हैं और देते हैं। तो 430 मेमोरेंडम हम लोग ने मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को दी और उनको कहा, क्योंकि देखिए भारत ऐसा जगह है, यहाँ वोट बैंक चलता है, अपना वोट बैंक, क्योंकि हमको एकता दिखानी है। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री को, आप बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी दीजिए, आपको बुद्धिस्ट लोग सेंटिमेंटल वोट देगा। अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी घोषित किया और उसी मुख्यमंत्री क्या बोल रहा था कि आर छुट्टी दीते पारबो ना, 26 छुट्टी हो गए, मैंने स्टेट में 26 छुट्टी हो गया, छुट्टी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसी मुख्यमंत्री ने अगला दिन ही छुट्टी दिया। वो जो रैली थी, शांति रैली हम लोग किए, कोई हल्ला नहीं किए, बैनर थे, अपने हाथ में प्ले कार्ड थे और अपने गवर्नमेंट का रिपोर्ट से अपने अपने पैसे पर आए। इतनी हजार लोगों की सिलीगुड़ी में शांति रैली की हम लोग ने और 430 मेमोरेंडम दिए। तो मुख्यमंत्री ने बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी घोषित की। इसका मतलब यही नहीं है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण हुआ या आकाश लामा के कारण हुआ। मैं हमेशा कहता हूं ये हमारी जीत एकता के लिए हुई है, एकता के लिए। एकता रहेगी तो कुछ भी जीत हो सकती है। तो इसी कारण वांगदी छिरिंग भुटिया जी हमेशा कहते थे कुछ कीजिए, क्योंकि महाबोधि महाविहार जो हमारे सबसे पवित्र स्थान है, हम तो सोते हैं बिहार की तरफ पैर कर कभी नहीं सोते हम लोग, इतनी पवित्र हम मानते हैं। लेकिन हम जब बोधगया जाते हैं, जो शांति के लिए हम जाते हैं, लेकिन हम लोग लौट अशांत होकर आते हैं कि वहां पर डीजे बजता है, साइड में हॉर्न बज रही है, कुत्ता घुसा हुआ है, वहां की जो पुलिस लोग, आप लोग बोलेंगे तो आप शर्म से झुक जाएंगे, इतनी अवस्था
है, अतिक्रमण है। अंदर में पुलिस तो सिक्योरिटी है, वहां पर लेडीज जेंट्स रहती है, दारू पीना ये सब होती है। आज हम लोग को धन्यवाद देना पड़ेगा बौद्धों को, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, जो अंग्रेज, जो ह्यूनसांग के जो किताब है भारत दर्शन के आधार पर उन्होंने बोध गया में खुदाई की, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खुदाई की, वहां पर पाया कि भगवान बुद्ध का वज्रासन वही है, सम्राट अशोक ने बनाया वहां पर महाविहार है, लेकिन जीर्ण अवस्था में थी। तो ये रोने लगा, तो उन्होंने वहां पर कोई बौद्ध नहीं थे, अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से उन्होंने चिट्ठी लिखकर उनको निमंत्रण की। अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से आए, रोने लगे बोध गया का जो अवस्था देखकर, पूरा मिट्टी से ढकी गई थी, वहां पर एक प्रथा लगा दी गई थी, बुद्ध नहीं है ये भूत है। भूत क्या है? आज मैं जो बोल रहा हूं ये कोई काल्पनिक नहीं है, तथ्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एलेक्जेंडर कनिंघम का किताब में आप पढ़िए, उसमें लिखा है भूत है। तो पत्थर मारते थे, मिट्टी से ढक दी गई थी। आज किसी भी धर्मस्थल आप जाइए, आप थोड़ा पहाड़ में रहती है या समतल में रहती है, लेकिन हमको बोध गया में नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि उसको ढक दी गई थी। तो जो भी था बचा हुआ, अनागरिक धम्मपाल ने अपना संकल्प लिया। उनका उम्र 27 ईयर्स 27 साल का था। संकल्प लिए, मैं मेरा पूरा जीवन में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराकर ही करेंगे। बहुत संघर्ष किए। 1891 में आए थे। 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, शिकागो में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, रिलीजन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, आपको मालूम है ना। और आज हम लोग बच्चे लोग स्वामी विवेकानंद को पहचानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण दिया बोल के हम जानते हैं, लेकिन अनागरिक धम्मपाल को हम लोग नहीं पहचानते। अनागरिक धम्मपाल जी ने ही स्वामी विवेकानंद को वहां पर मौका दिया था कि उस समय आपके पास शायद होगा नहीं होगा, मेरे पास है वो, उस समय कोई हिंदू धर्म था नहीं। उस समय था ब्राह्मणिज्म था, बुद्धिज्म था, क्रिश्चियनिटी था। तो ब्राह्मणिज्म को रिप्रेजेंट किए थे स्वामी विवेकानंद ने, लेकिन मौका नहीं दिया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद काइस्ट था, ही वॉज नॉट ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों ने विरोध किया था कि एक ब्राह्मण का रिप्रेजेंट कोई कास्ट नहीं करेगा, तो उनको भाषण देने के लिए मना किया था। लेकिन स्वामी अनागरिक धम्मपाल ने वहां पर जो ऑर्गेनाइजर थे 1893 में, उनको रिक्वेस्ट की कि इनको भी बोलने का मौका दे। तो वो उन्होंने बोले, वहां पर सनातन धर्म के ऊपर बोले। और ब्राह्मण इतनी चालाक, उसको एकदम हाईलाइट करके स्वामी विवेकानंद को ऊपर उठा दिया और अनागरिक धम्मपाल को अनागरिक धम्मपाल ने पूरा जीवन दिए। महात्मा गांधी ने 1922 में गया में बोला था, पहले देश आजाद होने दीजिए, ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को हो या नहीं हो, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट में जब ब्रिटिश टाइम में उन्होंने केस किए थे, उसका एक एक बात वहां पर है, लेकिन इसको दबाया गया। और 1933 में अनागरिक धम्मपाल की मृत्यु होती है। उसके पास उनके जो शिष्य है आंदोलन का आगे बढ़ाती है। तो अंत में भारत आजाद होने पर 1949 में ये कानून बनती है, बीटी एक्ट 1949। राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, उनकी अध्यक्षता में। और इसमें अन्य पूर्ण कानून है, क्योंकि विश्व में किसी भी धर्म स्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार बौद्धों का तीर्थ स्थल अन्य धर्म के चला रहे हैं।
इसी प्रकार चलती रही। हमारी बौद्ध, कोई हिमालयन बौद्ध, कोई लद्दाख के बौद्ध, कोई कर्नाटक के बौद्ध, कोई बिहार के बौद्ध, हम लोग अलग अलग हैं। और हमारे गुरु लोग भी अपने अपने जगह में अब धर्म कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े रिम्पुचे हैं। तो जापान से एक भांते आता है, भांते सुरेश साई। अभी नागपुर में हम लोग नेशनल मीटिंग अभी करके आए हैं, सुरेश साई जिसे भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। उन्होंने भी देखा ऐसा अवस्था, तो उन्होंने 91 में आंदोलन की, चरम आंदोलन की। इसमें हमारे भांते प्रज्ञाशील महाथेरो भी उस आंदोलन में थे। भूख हड़ताल पे थे, 86 डेज तक आंदोलन किए, जंतर मंतर में, बहुत पटना में। और सरकार को किसी भी आंदोलन को दबाने का बहुत कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर मालूम है आपको, वहां पर विदेशों की फंड आती है। तो सरकार ने उस आंदोलन को दबाया। आंदोलन को दबाने के लिए या तो पैसा का लोभ देकर, या तो पद का लोभ देकर, या तो दबाव देकर आंदोलन दबाया। तो हम लोग ने सोचा इस आंदोलन के लिए भांति सुरेश ऐसे के बाद पूरा आंदोलन जो 25 इयर्स और जैसे चल रहा है। हम लोग बुद्ध गया जाते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फोटो खींचते हैं और अपनी अपनी जगह लौट जाते हैं। तो हम लोग ने पिछले साल सभी को निमंत्रण, जिनसे संपर्क की, जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंद्रमोदी पाटिल, भीमराव यशवंत अम्बेडकर, राजरत्न अम्बेडकर, भांते जी, इसी प्रकार से वामसेफ का प्रोफेसर विलास खरा, सभी को निमंत्रण है। जो संस्था है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सभी संस्था को निमंत्रण की। जो आए, जो नहीं आए, भंते सुमित रतन, उसका सब रिकॉर्ड मेरे पास है मोबाइल में, सबको इन्वाइट किए। और हम लोग ने 22 अप्रैल मीटिंग करने के बाद फिर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर है रिंचेन लामू, उनको भी निमंत्रण की, वो भी आए। उसी बीच हमारे वहां पर एक विधायक है, बुद्धिस्ट विधायक सतीश कुमार, उनसे भी रिक्वेस्ट किया आप भी मीटिंग में आए। फिर अगला मीटिंग हम लोग ने 25 जून 25 जून में फिर मीटिंग रखा। 25 जून में मीटिंग रखा फिर, और हम लोग ने ऐलान की 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बोध गया में शांति रैली करेंगे। और पत्राचार किए बिहार सरकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को उस मीटिंग के बाद। लेकिन बिहार सरकार से जवाब आता है कि ये कानूनी मामला है, यहाँ पर लिखा कानूनी मामला गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, मतलब इट इज सब्सिडाइज मैटर। और हमारे पास 2013 की एक कॉपी है जिसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जो भांते सुरेश ऐसा ने भी रिट पिटीशन फाइल की थी, चंद्रमोदी पाटिल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उन्होंने भी की थी, वो अभय रतन बौद्ध ने की थी, वो सब इंडिविजुअल लेवल पर की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं है, जजमेंट नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है पेपर में दैट इट इज अ लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ बिहार, बिहार के लेजिस्लेटिव मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लेजिस्लेटिव मैटर और बिहार सरकार कह रहा है ये कानूनी मैटर। कोई कह रहा है ये बिहार का मैटर, कोई कह रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर। जो भी हो, तो हम लोग ने बोला कि हम लोग को जो भी हो, जिसका भी मैटर हो, जुडिशियरी भी हम लड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव भी लड़ेंगे, लेजिस्लेटिव भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग ने 26 नवंबर में शांति रैली का आयोजन किया। काफी लोग आए, 22 स्टेट से आए, कर्नाटक ऐसे शायद नहीं थे, 22 स्टेट से आए। 50,000 बौद्ध अपने खर्चे पर बोध गया लास्ट ईयर आए और बिहार सरकार हिल गई। तो फिर हम लोग ने पत्राचार किए
कुछ जवाब नहीं आया। राष्ट्रपति से जवाब आया है कि प्लीज सी द मैटर ऑफ लिस्ट। क्योंकि आज जो हम मांग रख रहे हैं, ये मांग आर्टिकल जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दी है, कॉन्स्टिट्यूशन दी है, उसमें क्लियरली आर्टिकल 25-26 में लिखा है कि एवरी रिलीजन कैन प्रोफेस देयर ओन रिलीजन, कैन प्रीच देयर ओन रिलीजन। तो उसमें धार्मिक अधिकार लिखा हुआ है, फ्रीडम रिलीजन है, तो इसमें अतिक्रमण क्यों? आज यदि यही चीज मक्का मदीना में यदि होता, आज विश्व के बहुत मुस्लिम चुप रहते। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न आपको है, संसार के क्या मुसलमान चुप रहते? आज एक नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद पर एक छोटा स्टेटमेंट दिया, पूरा ट्रेड बंद कर दिया था अरब देश ने। तो आज हम बहुत चुप क्यों हैं, सबसे बड़ी प्रश्न है। तो हम लोग ने दिल्ली में नेशनल मीटिंग की, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ बैठे। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, उन्होंने कहा बहुत अन्यायपूर्ण कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, इसको बौद्धों का मत बौद्धों का देना चाहिए। तो हमने कहा, वो सरदार है, हमने कहा कि गोल्डन टेम्पल में अन्य धर्म के लोग हैं क्या? तो नहीं। तो बोल रहे कि मैं बात करूंगा। गोल गोल बात किए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सेकेंड टाइम फिर हम लोग बैठे, हम लोग इंतजार में। तो हम लोग ने ऐलान की 17 सितंबर में अनागरी धम्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 लाख बौद्धों की पटना में हम लोग शांति रैली करेंगे, ये 17 सितंबर में। और 17 सितंबर ही क्यों? क्योंकि 17 सितंबर में अनागरी धम्मपाल की जन्मदिन है और पेरियर रामास्वामी की जन्मदिन 17 सितंबर में है, जो साउथ इंडिया के अंबेडकर है। उनके जन्मदिन के अवसर पर करेंगे। और हमारे जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC को दिमाग में, बिहार और बंगाल में 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा। अब विश्वकर्मा भगवान देखिएगा, आपका हूबहू देखने में रामास्वामी पेरियर रामास्वामी जैसे बना के रख दिया, दाढ़ी उड़ी करके। तो हम हमारे लोगों को उस प्रकार से गुमराह करते हैं दिमाग में। तो 17 तारीख के दिन ही हम लोग ने चुना और 5 लाख बौद्धों की हम लोग शांति रैली करें। इसी बीच सतीश कुमार जी ने विधानसभा में बात उठाई, अभी तक जवाब नहीं है। एक विधायक ललन कुमार पासवान, वो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने को बोला आप आवाज उठाइए, आप बीजेपी के हैं, वहां पर अभी बीजेपी सरकार है बिहार में। उन्होंने बात उठाई, लेकिन स्पीकर जवाब देता है कि वहां पर सिविलिंग है। आप वो वीडियो देखें, आप लोग वीडियो देखें, मैं आपको वीडियो आपको भेज दूंगा। अभी सब कर्नाटका ग्रुप में आप लोग ऐड करूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। उसमें कहता है स्पीकर कि देयर इज सिविलिंग इन फ्रंट ऑफ भगवान बुद्ध। आप मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ फोटोग्राफ है, यहाँ 3 फोटोग्राफ है। शायद ललन कुमार जी तैयार होके नहीं गए थे विधानसभा। मैंने उनसे बात हुई, कल परसों ही बात हुआ, फिर हो रहा था। 1880 का फोटोग्राफ है, महाबोधि महल 1880 का। आप लोग से भी अनुरोध है, आप लोग एक कॉपी रखिए। कोई कहता है, क्योंकि आज बौद्ध जो बात कर रखते हैं इसका प्रूफ है, काल्पनिक नहीं है। रामायण की तरह, महाभारत की तरह और रावण की तरह काल्पनिक नहीं है, प्रूफ है हमारे पास। 1880 में कहां पर दिख रहा है आपको शिवलिंग? 1882 छोड़ दीजिए, 1962 का देखिए, वेरी शिवलिंग। 1962 छोड़ दिए, 1986, तो अभी भी 86 तक काफी लोग जन्म ले लिए होंगे यहाँ पर। इसका फोटोग्राफ कहां पर है शिवलिंग? वहां पर एक दिया रखने का जगह था सामने, उसमें सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनाया था, उसको काट कर म्यूजियम में रखी गई, उसको दिया रखने का जगह था। और भांते प्रज्ञाशील महाथेरो, ही वॉज द फर्स्ट
सेक्रेटरी ऑफ BTMC। तो वहां पर उसको वहां पर जो महंत का पोता बैठा हुआ है, उसका काम ही है वो छुरी से, चाकू से उसको फरक फरक को क्या बनाना, शिवलिंग बनाना। और इनका षड्यंत्र है जल्दी ही ये वहां पर शिव मंदिर बनाएगा। इसके लिए विरोध हम लोग चुप करके बैठेंगे या हम लोग आवाज उठाएंगे? मेरा प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न आपको क्या है, आवाज उठाना है कि चुपचाप बैठना है? अकेले अकेले उठाना है ना यूनाइटेडली उठाना है? तो हम लोग ने नेशनल मीटिंग, तो नेशनल मीटिंग के बाद तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में एक चीज हम लोग ने क्लियरली कहा है, कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, मेंबरशिप ड्राइव नहीं करेगा, मेंबरशिप नहीं बढ़ाएंगे, जैसे बढ़ाते हैं और संस्था मेंबर बढ़ाओ नहीं। और जितनी भी संस्था है भारत में सबको समन्वय करके एक मुद्दे पर काम करेगा, एक कमेटी बनाएंगे और वो सक्सेस होने के बाद कमेटी भंग। आकाश लामा दार्जिलिंग, वेंकटेश देव क्या हेगड़े अपने अपना काम करेंगे, लेकिन मुद्दे के लिए हम कमेटी बनाएंगे। आज जैसे दिल्ली के मीटिंग में वेंकटेश जी आए थे, उन्होंने एक से आप लोग को जानकारी दी, उनके बाद देवेंद्र हेगड़े जी ज्वाइन हुए। आज का सभा में मैं अनुरोध करता हूँ इस मूवमेंट के लिए जो 17 सितंबर के लिए आप लोग कमेटी एक बनाइए, स्ट्रॉन्ग कमेटी, जो गांव-गांव में हमारी जनता को जानकारी दे, क्योंकि आज भी हमको मालूम नहीं है, 70 to 80% हमारी बौद्धों को मालूम नहीं है। एक तो महाबोधि महाविहार में हमारे हाथ में नहीं है, वहां पर जो भी होती है हमारे हित में नहीं होती है। अभी तो विष्णु का अवतार बोलना शुरू कर दिया है, गवर्नर ने तो कृष्ण का अवतार भी बोल दिया, कल राम का अवतार बोल देगा, हनुमान का अवतार भी बोल सकता है। कल गणपति उसका था, गणेश पूजा, गणेश का अवतार भी बन लेगा, ठीक है ना। और हमारे लोग उसको प्रमोट करते हैं। बुद्धिस्ट इज अ इंडिपेंडेंट रिलीजन। आज सम्राट अशोक ने इस धरती से, मगध राज्य से पूरे संसार में बौद्ध धर्म फैलाए, लेकिन हम जो असल बौद्ध है, मूल निवासी है, हम जब अशोक के वंशज है, हम नाग निवासी है, हम लोग अपना इतिहास भूल गए। तो सभी से अनुरोध है, आप लोग एक कमेटी बनाइए, को कन्वेनर बनाइए या आज, और सबसे विनती करने आए हैं 17 सितंबर में 5 लाख बौद्धों का शांति रैली हो रही थी, उसमें हम लोग कोई ढोल नगाड़ा नहीं, शांति से प्ले कार्ड रहेगा, हाथ में बुद्धिस्ट फ्लैग रहेगा, अंबेडकर फ्लैग रहेगा, हम लोग बुद्धम शरणम गच्छामि करके पटना में हम लोग शांति रैली करेंगे और पूरे भारत के बौद्ध एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। किसी ने कहा वर्चुअल मीटिंग डेली होती है, किसी ने कहा इसको इंटरनेशनल मैटर बनाना पड़ेगा, हम लोग डिस्कस की। हम लोग दिल्ली में जब मीटिंग कर रहे थे, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज के एम्बेसी है, जापान, कोरिया, लाओस, वियतनाम, श्रीलंका, वहां पर हम लोग मेमोरेंडम देंगे, हम लोग सोच रखे थे, लेकिन इस प्रकार से हम लोग डिस्कस किए कि नहीं, क्योंकि अभी केंद्र सरकार में जो बैठा हुआ है वो कभी भी आपको देशद्रोही, एंटी नेशनल कभी भी लगा सकता है। पहले, सबसे पहले हम लोग अपने भारतीय जो बौद्ध है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग पहले आवाज उठाए। हमारे बौद्ध पहले एक हो, इंडियन बौद्ध, हमारी जो पुरानी विरासत, आज में आप मेरे को हाथ उठा के बोलिए, यहाँ पर अपनी जमीन और अपनी घर किन किन की, हाथ उठाइए। जमीन भी आपका है, घर भी आपका है, और अपनी है, हाथ उठाइए। किसी का जमीन है, किसी का अपना नाम पे जमीन, किसका है?
ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಭೂಮಿ ಜಮೀನು ಇದೆ ನಮ್ದು जमीन और घर आपका है कितना है? आप भाड़ा में रहते हैं? आप रेंट में ಎಕರೆ ಇರ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಗುಂಟೆ ಇರ್ಲಿ. रेंट है क्या? ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು, 50 ಜಮೀನು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ. तो यहाँ दिख रहा है सभी का अपना अपना है। जमीन में जमीन भी है, नहीं नहीं, घर रहेगा तो जमीन तो रहेगा। आपका जमीन में और कोई बाहर का आदमी आपका 4 इंच जमीन लेता है, आप छोड़ेंगे? तो आप महाबोधि महाविहार के लिए क्यों चुप है? दैट्स द मेन क्वेश्चन। आज मेरा विरासत, मेरा धरोहर अन्य धर्म कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप बहुत चुप नहीं रहेंगे। ये मैं ऐलान करना चाहता हूं आज बेंगलोर में और कर्नाटक के बहुत चुप नहीं रहेंगे। आप लोग से अनुरोध है, आप हो सकते हैं अलग अलग संगठन में। अभी अभी हम लोग ने नागपुर में पैट्रन रखे, सभी को बिना पूछे रखे, सबने स्वीकृति दी। वहां पर मीटिंग में आए थे भीमराव यशवंत अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, चंद्रबोडी पाटिल जी आए थे, राजेंद्र पाल गौतम अभी जो कांग्रेस में ज्वाइन किया अभी, तो पैटर्न रखे हैं इस प्रकार से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर, उस प्रकार चंद्रबोडी पाटिल जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दूसरा है, राजरत्न अंबेडकर का ग्रुप है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, हमको तो मालूम ही नहीं था समता सैनिक दल भी ये है, हम ग्रुपिज्म। कभी भी जो भी हो सब अपने अपने मुद्दे पर काम कर रहे हैं, अच्छा है, प्रेशर सब तरह से आना चाहिए। तो समता सैनिक दल ग्रुप को आज समता सैनिक दल वहां पर वॉलंटियर के लिए सब वहां पर आ रहे हैं पटना में। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जो अनागरिक धम्मपाल ने बनाए थे, इस बार मैं नागपुर जाते वक्त कलकत्ता होके गया था, वहां पर स्टे किया महाबोधि सोसाइटी के हेडक्वार्टर में। भांते शिवाली जी से मिले, वो कह रहे थे ये आंदोलन तो अनागरिक धम्मपाल ने किए, महाबोधि सोसाइटी ने किए, अभी तो हम लोग धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। हमने कहा आज कल्पना कीजिए भांते जी, अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से कैसे आया होगा। आज तो मैं तो एसी ट्रेन में आया हूँ, बैठने की व्यवस्था भी अच्छा है, काफी सुविधा है। आज सुबह सुबह इडली भी खाया, डोसा भी खाया, सब कुछ खाया। लेकिन आप सोचिए अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से मद्रास कैसे आया होगा, मद्रास से सारनाथ कैसे गया होगा, सारनाथ से बोध गया कैसे गया होगा, और कैसे जीवन दिया है। उसी अनागरिक धम्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। आप लोग भी आंदोलन में आइए। कितने रो रहे होंगे उनके आत्मा, अभी तक भी महाबोधि महाविहार मुक्ति नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या, हम लोग आएंगे और अपील करेंगे। तो इसी प्रकार से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन, इसी प्रकार से भंते सुरेश देसाई के पास अभी नागपुर में 24 अगस्त में हम लोग वहाँ थे, मीटिंग, नेशनल मीटिंग थी। उनके घर, उनके जहाँ थे वो वहाँ पर नागपुर में गए, सोया हुआ था। ही इज 90 ईयर्स, 90 साल का, बहुत वीक, और आवाज भी नहीं निकलती है। लेकिन वो सुन रहे थे कि कोई आकाश लामा है, आंदोलन कर रहा है। हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, तो हम गए, वो बिस्तर से, घंटे जी के साथ में बिस्तर से उठ गए, और आवाज जो है उनका दब गया पूरा, मतलब आवाज आप समझ में नहीं पाएंगे, इतनी वीक हो गए। लेकिन जब बोले हम लोग आए, देखिए उनकी शक्ति देखिए, आवाज निकला उनका, मैं समझ रहा था कि खुशी की है। आज जिंदगी भर जापान से आकर अभी नागपुर में बैठे हुए हैं, देखिए पूरा जिंदगी दिए महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए। मीटिंग में मैं आऊंगा, कल कितना बजे मीटिंग है, हमसे भी पहले पहुंच गए थे मीटिंग में। तो भंते सुरेश देसाई जी को रखे पैट्रॉन, उसी प्रकार भंते करुणाकर, भंते बोधिदत्ता, यहाँ पर अभी आपको नहीं पूछे, आपको फोन कर रहा था, आपको फोन नहीं लग रहा था, तो भंते प्रज्ञा, भंते बुद्ध घोष तेलंगाना के, ज्ञान बोधि
राजेंद्र पाल गौतम, प्रोफेसर रतन लाल, जो दिल्ली के जो हिंदी कॉलेज में हैं, उनके घर गए थे। आप उसके लिए बोलिए। चंद्रशेखर आजाद, जो इस पार्टी के आएगा, भीम आर्मी के MP डॉक्टर राहुल सिंह, इसी प्रकार से भांते सुमित रतन, प्रकाश दास दार्शनिक, क्या नाम है, कपिलास खरात, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इन सबको हम लोग ने एक रखे हैं। और आप चाहते हैं कर्नाटक में एक कोई बड़ा ग्रुप है, आप लोग भी नाम दे सकते हैं दलित कैंटीन ऐसा पैटर्न, क्योंकि ये आंदोलन कोई एक व्यक्ति का नहीं है, कोई आकाश लामा का आंदोलन नहीं है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हमारे समग्र बौद्धों की है। जितनी आपकी है उतनी मेरी है, उतनी उनकी भी है। तो आज ये आंदोलन दबेगी नहीं। एक आकाश लामा को दबाएंगे, 1000 आकाश लामा जन्म देगा। आज के मीटिंग से यही न्यूज जाना चाहिए, आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए। और 18 तारीख को हम लोग बैठेंगे बोधगया में। 17 सितंबर में शांति से हम लोग रैली करेंगे। सुबह 9 बजे तक आपको गांधी मैदान, जो अशोका मैदान था पहले, जहां से सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म की प्रचार किए थे, अपने बेटे महेंद्र को, अपनी बेटी को भेजा था, आज उसी मैदान को गांधी मैदान का नाम है। वहां पर हम लोग 5 लाख बौद्ध आएंगे और वहां से हम लोग शांति रैली करेंगे और 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। और सभी को लेकर, सभी राज्य का प्रतिनिधि को लेकर, जितने मेमोरेंडम, आप लोगों को शायद मेमोरेंडम कॉपी मिला नहीं मिला, दे देंगे, देवेंद्र जी या वेंकट जी दे देंगे, भांति बोधि दत्ता का पास है। वो मेमोरेंडम हम लोग ने आप लोग को जारी की है, आज से 2 महीने पहले की गई थी, कि वो अपने अपने संस्थाओं के लेटर पैड पर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर्स का सिग्नेचर करके आप लोग जमा करेंगे। 15 तारीख तक गौतम बुद्ध विहार एड्रेस भी दे दिया हूँ, पटना में है। भांति जी वहीं पर वर्षोवास वहीं कर रहे हैं। वहाँ पर 15 तारीख तक आपको स्पीड पोस्ट में भेजना है। और सिग्नेचर कैंपेन, घर घर में सिग्नेचर करके, वो सिग्नेचर करके भी आपको देना है। यदि 15 तारीख तक नहीं पहुंचा तो 17 तारीख सुबह सुबह पहुंचाइए। वहां पर अभी कर्नाटक के साथ वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, तो कहा कि हम लोग को रहने का व्यवस्था, मैंने पहले कहा कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पास पैसा नहीं है। जो भी हम लोग मीटिंग करते हैं, ऐसा मीटिंग करते हैं, आज 1000 मीटिंग कर चुके हैं, उसी दिन हम लोग पैसा कलेक्शन करके मीटिंग करते हैं अपना पॉकेट से लगाकर। और मैं कर्नाटक को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ। कर्नाटक की इस मीटिंग में आने के लिए फर्स्ट टाइम इतने संगठनों ने, कर्नाटक ने एक फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया आने जाने का, तो कर्नाटक टीम को बहुत बहुत साधुवाद। एक्चुअली मैं और रहना चाहता था, मैं फिर पटना पहुंचना पड़ेगा मेरे को, 11 तारीख पटना पहुंचना, क्योंकि तैयारी करनी है, पेंडल लगानी है वहाँ पर। अभी परमिशन भी मिल गई है, कल ही मैसेज आया, परमिशन हो गया। 67,000 रुपीज वो गांधी मैदान का जमा करना है। मैं भांति जी को आपके अकाउंट में देकर आप पटना में जाए, कल ही जाके पटना में वहाँ पर डीडी बना के दे दीजिए। हम लोग आपको पानी का व्यवस्था करेंगे, टॉयलेट का व्यवस्था करेंगे, लेकिन रहने का व्यवस्था हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं तो आप लोग एक QR कोड दिया है, उसमें डोनेशन दे सकते हैं। एक QR कोड है, उसमें डेली ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के डेली उसमें आपका हिसाब आता है, कितना कितना कलेक्शन हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, उसका हिसाब डेली आता है। तो यही अनुरोध है आप लोग से, ये लड़ाई जितनी हमारी है उतनी लड़ाई आपकी है। युवाओं को शिक्षित करें। युवा और महिला, आज महिला की संख्या खूब कम है, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने में महिला की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज हमारे हिमालयन बुद्धिस्ट में ये धर्म प्रचार प्रसार महिलाओं करते जा रहे हैं। तो हम लोग माने पर संघ बोलते हैं, माने पर संघ, उसमें ज्यादा महिला होती है। तो महिला लोग आगे आना बहुत जरूरी है। युवा को अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश में जो बुद्धमय भारत था, बीच में ये 1000 साल में हम लोग भटक गए।
हम लोग पहाड़ी जो बौद्ध हैं, भंते सुरेश जी के जो आंदोलन हुए उसके हम लोग अध्ययन किए कि उस आंदोलन विफल क्यों हुआ। हमने देखा उस समय एक नंबर आंदोलन जब हुई थी वो महाराष्ट्र से ज्यादा हुई थी, महाराष्ट्र से। और बिहार में एक आवाज, वहां पर ब्राह्मण तो बहुत चालाक होता है, वो बोल दिया था कि मराठी लोग आता है बिहार और गंदा करके चला जाता है। उस आंदोलन में भांते जी भी थे, काफी लोगों से सुना। तो अपना उमेश बौद्ध झारखंड के, वो भी बोल रहे थे कि उस समय बोध गया में जो आंदोलन हुई थी, पानी पीने का, पानी का दुकान और खाने का दुकान पूरा बंद कर दिया बौद्धों के। तो हिमालयन बुद्धिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, बंगाल, जो हम उत्तर बंगाल में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम के बौद्ध का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये अभी आंदोलन हम लोग सब मिलके, महायाना हो, हिनायाना हो, थेरावादी हो, वज्रयाना हो, सब मिलके हम लोग बुद्धयाना होके हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग भी सम्मिलित होइए, बुद्धयान होके हम लोग लड़ेंगे और निश्चय हम लोग बुद्ध में करेंगे। किसी कह रहा था कि तिरुपति भी हमारा है, जगन्नाथ भी हमारा है, मथुरा हमारा है, किताब भी लिखा है। ठीक है, हमारा है, लेकिन जो असल हमारा है अभी जो, वो तो पहले ले ले। भारत सरकार और बिहार से तो यही तो डर है, बुद्ध गया यदि बुद्धों को देंगे और जगह भी निकलेगा, सोमनाथ भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं सरकार से, आज आप यहाँ पर कोई IBDIB के लोग होंगे, सरकार से हम लोग शांति से अनुरोध कर रहे हैं, आप अपना रिपोर्ट दे दीजिए कि बौद्ध तो शांति से बौद्ध स्थल जो है महाबोधि महाविहार, ये संपूर्ण रूप से बुद्ध गया में हमारी बौद्धि रहे। सरकारी ट्रस्ट है, सरकार की तरफ से निगरानी में रहे, लेकिन संपूर्ण कमेटी बौद्ध रहे। बात का बात देखा जाएगा, बाद में कौन भांते बनेगा, कौन ये बनेगा, बात की बात। लेकिन कमेटी में ये जो अन्यायपूर्ण कानून है BT एक्ट 1949, इसको पूर्ण रूप से निरस्त करे या संशोधन करे, क्योंकि ये टोटली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपने मेरा बात ध्यान से सुना। सभी से मैं अनुरोध करना, तो हृदय से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये आंख में आंसू आती है हमारे जब बोध रह जाते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ बारंबार, ये लड़ाई आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है। कोई आकाश लामा के नहीं है, कोई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की नहीं है, सभी के। हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आपको 17 सितंबर में 5 लाख से 10 लाख बौद्ध एकत्रित होंगे, भारतीय बौद्ध एकत्रित होंगे। कितने बोलते हुए मेरा सबको धन्यवाद। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರದ ಚಳವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ಅದರ 7 ಬೇರುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಆಕಾಶ್ ರಾಮ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್